ਬਹਰਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗੀ ਰੱਖੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੂਚਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਖਲੋ ਜਾ ਤੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਧੱਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇ ਦੇ ਆਮੀਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਮੀਨ ਆਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ, ਅਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ, ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 1800 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਨਾ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਨਾ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੋ ਦਾ ਮੰਨ ਜਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਗਾ। ਲੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਜੇ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ। ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸਨਦ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲਾਸ਼, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਰਹੀਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋ ਖਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ WhatsApp ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ WhatsApp ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਬੜਾ ਪਾਇਆ, 1000 ਯੂਰੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਵੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ?
ਜਿੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਜੂਲੀਅਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਜੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਯਲਾਸ਼ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਪਸ਼ਤੋ, ਅਰਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ, ਚਾਈਨੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਕੋਰੀਅਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਲਾਸ਼। ਕਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰੋ ਬੋਮੀਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 85 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਲਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਰ ਲਓ ਜਲਦੀ। ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਮੈਂਟੀ ਬਾਈ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰਨ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੀਜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਂਝ ਮਲਕ ਮਰਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਬਰਾਡਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਬੰਨਾ ਵਾਂ। तो केड़ी कंट्री दो दिन से दोनों बहन भाई आप भौंक रहे हैं, आपको किसी ने कुछ भी नहीं डाला। 2 दिन से आप भौंक रहे हैं, आपको किसी ने कुछ नहीं डाला, लेकिन कुत्ते दरवाजे पे बैठ। 2 दिन से भौंक रहे हैं आप। 2 दिन से आपकी इतनी औकात कदर ही नहीं है कि वो आपको कोई जवाब दे। आप उनके लिए वो चूड़े मुसल्ली हैं। ये देख लें, दोनों बहन भाई एक ही जगह पर बैठे हैं और भौंक रहे हैं कल से। 2 दिन से भौंक रहे हो, क्यों भौंक रहे हो? और कोई आपको हड्डी, अगर आपको हड्डी पर गोश्त नहीं है तो हड्डी को चाटो, मुसलमान चाटो हड्डी को। मैं अगर आपको वो आमिर नजीर, कुत्ता जो है इसको पीछे करे। अगर आमिर नजीर का लोथड़ा चाहिए तो वो ले आकर मैं दूं आपको, शायद वो खाकर आप जो है ना खुश हो जाए। ये आपको इख्तियार है, आप इमरान भाई गलत कर रहे हैं। आप जवाब दें, ये आपका इख्तियार है मैडम। हेलो चल रहा दूजी बराड़ जिया भाई, जिया भाई आप इधर हैं? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੈ। सन का जिन्ना कादियानिया दी इज्जत है ही कोई ना, वही सन कैसे थोड़ी बेइज्जती हो सी। चलो जी, ये तो वही तेरी बड़ी इज्जत है ना। हिसाब हो गया ना कंजरी वाला, जिवे वो ये निकलदा ना आदि कंजर दा बच्चा। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। अच्छा निदा नफर ना ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 36 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ? ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪੜਿਆ ਹਾਂ, ਮਲਕਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਲੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ, ਚੁੱਪ ਮੁਸੱਲੀ ਕਰ। ਆ, ਮਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਜੋ यहाँ लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ नहीं देखो ना जो मलक साहब ने गल बड़ी वधिया की है कि तुसी तो ना करते रहे। ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਿਦਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ہیومینٹی تو بندے بجا چھڑے نا ہیومینٹی خیر میری وہ تو پہندے نے کنڈی وہ اتنا چھکیندے تو بہ کے بندے بجا دینا نہیں عامر بھائی ونج بیزی ہوئے ہی تھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عمران بھائی اور کمیونٹی؟ الحمدللہ. کہاں عمران چلا گیا؟ جی ہاں ٹائم ہو گیا سی. یار تم لوگ بھگا دیتے ہو، سن رہا ہوں ندا کا نام لیتے ہو اور کا بھاگ جاتا ہے یار. نہ لیا کرو یہ ان کے لیے واقعی بھی یہ اینڈ ختم کر چکی جماعت کے ندا نے، جماعت ختم کر دی ہے ایک ندا نے. ایک نیدہ سب پہ بھاری ماہواری ماہواری. عمران ویسے مرزا نے تو چھوڑا نہیں تھا ان کو، کہیں بھی بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. ندا نے تو بالکل ان کو ختم کر دیا ہے. جی ہٹ رہا تو سی. لا حول ولا قوت، ایسی کیوں چھٹی ہے؟ تساں تے بابے ہری لائے نے، ڈاکٹر عبدل قدیر لایا ہے. ਇਹਦਾ ٹائم ਮਤਲਬ دی ਹੈ نہیں احمدی ہوندے. ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ؟ یہ بھی گل ٹھیک ہے. وہ احمدی نہیں ہیں، قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. یہی تو بات میں کر رہا ہوں نا بھائیو. اچھا دوسرا یہ یونٹی یہ قادیانی کہتے ہیں تو یہ غصہ کر جاتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ مرزا کا نام اتنا گندا ہے قادیانی ہونا. بے وقوفی ہے نا، غصہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو نسبت ہے، ایک شہر سے قادیانی نسبت ہے، اور مرزائی مرزا کی نسبت ہے، تصبت ہونا چاہیے. نہیں یہ تو گالی سمجھتے ہیں نا. اور اگر آپ ڈیبیٹ کے دوران مرزا قادیانی کہہ دیں یا مرزا نہ لیں یا احمدی نہ کہہ دیں، یہ بولتے ہیں اسی کے ہمارے 4 گھنٹے نکل جاتے پیدا ہوئے تھے تو ان کا سر کہاں پھنس گیا تھا آپ بتا سکتے ہیں؟ بالکل. جب مرزا خود لکھتے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مرزا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مرزا نے خود لکھا ہوا ہے جب میں پیدا ہوا تو میرا سر میری بہن کی ٹانگوں میں تھا. تو پھر کیسے نکلا اور کہاں پر پھنس گیا تھا وہ؟ ہاں اب دیکھ لو. ਉਹ ਮਿੰਟੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਰ یار ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਿਣਾ لکھے ਹੈ. ہے ਫਸਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ. نہیں کٹے انہوں نے نکل گیا سی. ہوں تو مر گئے مرزا صاحب. اگر سر نکلے پھر ہیومینٹی بعد سر نکل جائے گا نا تو مرزا سر نکال کر بات کرے گی. ابھی پھنس کر بات کرتی ہے، سر پھنسا ہوا ہے، رہنے دو، پھنسا ہوا ہی رہنے دو. مرزا صاحب کا دماغ میرا خیال ہے اسی لیے نہیں صحیح کام کرتا تھا. ان کا سر پھنس گیا تھا نا وہ ٹانگوں کے درمیان، تو چوٹ لگ گئی تھی.
اس وقت اتنا علاج وغیرہ تو نہیں تھا. چلیں سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ اگر کوئی اس طرح پیدا ہو یا عام بھی پیدائش ہوتی ہے انسانوں کی، تو کبھی کوئی اس طرح ذکر کرتا ہے اپنی پیدائش کا؟ ایمان سے بتانا. میں نے عام تو کبھی انسان نہیں سنا. احمد بھائی اس سے ان کا ایک جھوٹ واضح ہونا تھا، جو خاتم الاولاد انہوں نے لکھا ہے نا، وہ جھوٹ ان کا واضح ہونا تھا. باقی خاتم النبیین تو منتے نہیں ہیں، خاتم الاولاد میں پھنس گئے ہیں، وہ خود بول گئے. نہیں میں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، اللہ پاک نے اس کو ذلیل کیا ہوا ہے، اور اس کے ماننے والے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ سمجھتے ہوئے بھی مجبور ہے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، ورنہ خدا کی قسم کوئی ایسے شخص کو انسان بھی نہ مانے. بزرگ تو دور کی بات ہے کسی. بس جی اللہ پاک ان کو ہدایت دے. مینٹی نے بڑی پیاری گل کی تھی آج. ہم تو ہدایت کی دعائیں کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. بہت اچھی گل ہے. آج ہیومینٹی کی چنگی گل کر لئیے. جی جی ہاں کہتے ہیں اللہ پاک ہدایت دے. اگے تو چبلا ہی ماردا ہے جدوں سے. یہ مرزا قادیانی کا دلی بروزی ہے. چبلی ہوندی ہے، اور کیا. یہ ہیومینٹی جو ہے نا مرزا قادیانی کا دلی بروزی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے اسی طرح کی باتیں کل کرتا ہے. پتا کی ہویا، کل مرزائی مینوں کہندے نے حسین دی براڑ تے تسی نا اسی قرآن پڑھنے ہیں، پھر تسی وچ مرزے نو کیوں لائم دیو؟ تے میں کہا تسی دسو مرزے نو کٹ دیجئے تے تواڈے کول بچدا کی ہے پھر؟ آندے نے بھی گل ٹھیک ہے. میں پھر کرن دیو گل. مرزن کٹو تے تواڈے کول ہے کی؟ خلافت خلیفے کا باندروں والا منہ ہی بچتا ہے. تو وہ بھی حیران ہو گیا. آندے نے بالکل گل تو کرنی چاہیے مرزا صاحب سے. میں یہاں تے آکھو مرزا صاحب نو کٹ دیے تو ٹھیک ہے، قرآن دے نو مان لو پھر صحیح ہے. آندے نہیں کڈنا نہیں ہے. تو میں پھر کرو گل. انہوں نے جو ہے نا صرف مرزا کو دیوار پر لٹکانے کے لیے رکھا ہوا ہے، خلیفوں اور کو، باقی یہ کرتے اپنی ہیں. خلیفہ نو کٹ لیے تو ندا بچتی ہے، ندا نو کٹ لیے تو لقمان بچتا ہے. تے انہاں سارے دا مجموعہ جیڑا مجموعہ او ہے جی کی کہندے نے اس نو، انہاں دا خلیفہ بغیرت. دنیا والو صدقے تمہارے. یار میں سوچ رہا تھا مرزا صاحب نو خنزیر، لانتی، دجال، کتا اور حبیث اس طرح نہیں کہنا چاہیے بغیر کسی وجہ سے. کی خیال ہے؟ ہن وجہ نہیں ملتی پئی. نہیں وجہ تے پھر ہے نہیں، لیکن عام روٹین تے انجے ہی کہندے رہنا کہ مرزا صاحب کتے، لانتی، حبیث، دجال، لعین، اس طرح بھئی کہنے دا مطلب کوئی فائدہ نہیں نا نارمل لات وچ. یہ تو تھوڑی بڑی دور دی سوچ ہے مینٹی صاحب، بڑی ہوں ایسے طرح ہی بندہ کہندا ویلا بہ کے مرزا صاحب کتے، لانتی، حبیث، دجال، لعین، تے بھی تے غلط ہے نا. اچھے طریقے نال بھی تے بندہ کہہ سکدا ہے نا، ادا سانپ کر کے گل کر لو. اچھے طریقے نال کس طرح مطلب؟ جویں گل کرنے ہیں پہ عام گل پہ کرنے ہیں، ضرورت ہے نا مرزا صاحب نو لانتی، حبیث، کتا، دجال، حرامی، ولد الزنا نہیں دل اچھے وچ طریقے ہی نال نہ کس طرح دیکھو کہنا ہے؟ کبو.
अच्छे तरीके ਨਾਲ ਕਿਸ ਮੈਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਮੀ ਵਲਦੁਲ ਗਨਾ ਦਜਾਲ ਲਾਂਤੀ ਕੁੱਤਾ ਹਬੀਸ ਹਰਾਮੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਦੱਸ अच्छे तरीके नाल ये कि फिर जनाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी करके गल कर लो जनाब मोहतरम मिर्जा कादियानी लांती साहब इस तरह कहना चाहिए नहीं है तो वेख लो ना फिर तुसी हुण जान के फिर पढ़ के बाद च आखो ते मिर्जा साहब नु लानती हनवीर कुत्ता दजाल हबीस ते फिर ये गलत हो जाएगा ना चलो फिर मैं वो माजरत चाह रहा चलो मैं माजरत करना मैनू ये दसो अच्छे तरीके ਨਾਲ किस तरह कहना मलक इमरान नु पूछने कि मैं कहना चाहिए चलो जी जी बात है की मैं कहा चलो मेरी रहनुमाई कर दो थोड़ा मैनू भी दस छड़ो अच्छे तरीके ਨਾਲ इस मलक तरह साहब इन अल्फाज दा मुखातब करो तो अच्छा होएगा ना जो अगर उनका नाम लेना है ना तो इज्जत से ले हजरत मिर्जा गुलाम मूत अलैह सैमसंग क्योंकि सैमसंग इसलिए वो है उनमें बहुत से फ्यूचर है नहीं अब इमरान साहब अब आप बदतमीजी करने लग गए हैं ये बुरी बात है हाँ ना तो वो यार कहते हैं मैं ये भी हूँ वो भी हूँ वो भी हूँ तो ठीक है ना ये नाम उनके लिए सैमसंग हाँ सनसिल्क का क्योंकि ये देख लें वो क्योंकि आईफोन में इतने फ्यूचर नहीं है जितने उसमें है ना तो कभी वो कहता है मैं कृष्ण हूँ कभी कहता हूँ मैं गुरु नानक हूँ कभी कहता है मैं इमाम मेहदी हूँ तो उसमें बहुत से फ्यूचर पाए जाते हैं भाई हाँ ये बात ठीक है आपने हर सब कुछ एक ही छत के नीचे जी जी आपने इसकी बजाय कि आप बोले मिर्जा साहब लानती हैं हनवीर हैं दज्जाल हैं मैंने देख ले एक मिनट ह्यूमैनिटी साहब मैंने बार बार जाकर सारे दोस्तों से पूछा कभी आपने मेरे मुंह से ये अल्फाज सुने हैं कि मैं जो मिर्जा को कहूँ मिर्जा लानती है मिर्जा कज़ाब है मिर्जा खंसीर है कज़ाब दजाल है लानतियों का लानती है अल्लाह की लानती सारे दोस्तों ने कहा था आपने ऐसे अल्फाज नहीं बोले नहीं आप बहुत अच्छा सैमसंग जो बोल रहे हैं वही बहुत है बहुत अच्छा फ्यूचर आपने मुतारफ करवाया है लेकिन मैं कहता हूँ वो मुंह से ये कहता है कि नस्लें हैं मेरी बेशुमार यानी कि वो अगर इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको वो जो कहता है ना कि नस्लें हैं मेरी बेशुमार यानी कि उसमें बहुत से फ्यूचर है बहुत सारे हो गए लेकिन इसकी क्या बोलते हैं कि वजाहत तो कोई कादियानी कर सकता है ना आप अपने पास से करोगे तो ये तो काबिल कबूल नहीं है ना फिर भाई मैं जो मुझे समझ आया कि मैं तो वही करूंगा आगे फिर वो तो सवाल तो कादियानियों पर करेंगे हाँ जी ये आए हैं जी जान की अमान साहब नहीं इनको नहीं होगा 15 जून का इन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है देखें 15 जून को क्या वो बोलते हैं रॉकेट निकलता है इन्होंने कोई नहीं लबना यार असी एवं कि ये नहीं लबना वो जाने वो काम जानन मलक ने की कहना है ਅਸੀਂ ਤੇ ਠਾ ਬੈਠੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਸ ਆਪੋ ਮਲਕ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੈਲੀ ਨੇ नहीं पप्पू मलक ने खुद किया है मेरा तो वो हाल होया है धोबी दे कुत्ते वाला ना करते रहा ना काटता ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ 700 ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਹਿ ਜਾਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਸੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਦ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਫਿਰ ਮਲਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੇਲੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਲੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ। नहीं नहीं गलत वो अगले दिन कह रहा था कि मैं बदमाश हूँ, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने कहा आप सीधे सीधे ये कहें कि आप बेगैरत हैं। बदमाश तो बेगैरत होते हैं, जो ना कोई असूल मानते हैं, ना कोई 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 कानून मानते हैं, ना कोई लोगों का फैसला मानते हैं, ना पंचायत मानते हैं, ना अपने घर वालों की, यानी कि बेगैरत ही होते हैं ना वो। तो फिर वो मुझे गालियाँ देता है। ना करो यार, पप्पू नु अगे बड़ा परेशान है पप्पू। नहीं नहीं, मैं तो टेली दी गल कर रहा, टेली। अच्छा एक चीज़ मैं नोट की थी, ਜਿਹੜਾ ਪੱਪੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਸਨੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੰਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ? अल्लाह अकबर। ज़िया भाई भी नहीं है। उस्मान भाई आप इधर हैं? वो भी नहीं। मुसलमानों को तो फैसले नहीं करवाए इन्होंने, जाके अबू अली साहब मुझे ये बताइए, मोमन मर गए सी दुनिया थे, कोई मोमिन नहीं रह गया। बाज का दो पार्टियां एक अकीदे की नहीं होती। अबू अली साहब दुनिया में मोमन फौत हो गए थे, मुक गए सी, जिन्हां दे बनी कोल इसराइल वाले बनी इसराइल वाले को फैसले सातवें रसूल ने बनी इसराइल जिन्हां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ झूठिया ਇਹਨਾਂ को ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? मेरे बाप साहब, अगर पार्टियों के अपने अकायद एक जैसे नहीं हैं तो वो थर्ड भाई एक सेकंड मेरी बात सुने, अबू अली साहब मेरी बात सुने, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैं आपकी बड़ा एहतराम करती हूँ, मुझे एक एहतरामन एक बात बताए कि अगर मैं एक शख्स को कहती हूँ कि ये यहूदी है, इसके पास कोई ना जाए, जो इनके पास जाएगा इनसे बात करेगा वो दायरा इस्लाम में नहीं है, और उसके बाद वो उसी बंदे को भगवान मान लेते हैं, मुझे ये बताइए जायज है? नहीं, अब मसले के वो इतना कुछ कहने के बाद उसको कहना, उसके पास जाना, तमाम मुसलमानों में उसको एक मोमन नजर नहीं आया था? नहीं, आपकी बात बजाय कि अगर उनसे इतना तजाद रखते हैं तो फिर उनको जज नहीं देना तजाद चाहिए। क्या रखते हैं, मुझे गालियां देते थे क्योंकि मैं कुरान और हदीस पे उनके साथ जब बात करती थी, वो अपना कोई नोटिस उन्होंने लगाया होता था तो मुझे गालियां देते थे, गलाजतें बोलते थे मेरे ऊपर कि वहां पर गई है यहूदियों के पास, मेरी ब्रॉड को हाईजैक कर लेते थे कि ये यहूदी आके इनके पास आके बैठी है, इनके साथ बात नहीं हो सकती, और फिर उसको भगवान मानना, इन्होंने भगवान को कहा कि अल्लाह को छोड़ के। अब मुझे ये बताइए जायज है? देखो ना, और अगर उन्होंने उनको एज ए जज दोनों पार्टियों ने मुतफिका तौर पर बना लिया तो देखिए, अपने एक जज होता है गवर्नमेंट से मुकर्रर किया हुआ, एक होता है आपकी चॉइस के ऊपर जज। आप मुझे बताइए किसी कि एक महफिल में मुसलमान को छोड़कर आप मेरे कायद की नहीं, मैं आपके मेरी कायद बात की नहीं, सुने है तो कि अल्लाह हमारे ताला दरमियान तो फरमाते हैं कि यहूदों ने सारा के साथ दोस्तियां ना रखो, तो ये उनको जज मुकर्रर कर रहे हैं। देखो,
देखो एक उमर बाब साहब है, एक दुनियावी तौर पर हम इधर बैठे हैं 5 बंदे, हमारे कायद एक जैसे नहीं है, हमारे बीच में कोई बात होती है तो कोई देखिए, जिस पे बू हम अली दो साहब, पार्टियां मेरी बात मुतमिन हो जाए, हम बना सकते बात हैं। को समझे, बात को समझे। एक शख्स जो है वो कहता है मैं एक बेहतरीन मुसलमान हूँ, वो कहता है मैं नमूस रिसालत का बहुत बड़ा पहरेदार हूँ, वो दूसरों को गाली गलोच करता है, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता है, वो एक ऐसे ग्रुप को मेंशन करता है कि इन लोगों से बात करना हराम है, ये यहूदी हैं, इन यहूदियों के साथ ताल्लुक रखना मना है, इनके साथ किसी तरह की बातचीत करना मना है, और वहां पर वो लोगों को जाके रोकते हैं, जो जाते हैं उनको गाली देते हैं। बाद में वो इंसाफ के तकाजे उस यहूदी से पूरे करवाते हैं और फिर वो अल्लाह को छोड़ के उसको भगवान मानते हैं। मुझे बताइए, जायज है? जी बोले अली सीना। जी सलाम अलैकुम। जी सॉरी, मैं मसरूफ हो गया था। अबू अली भाई मेरी तो- बात सुन लीजिए। अबू अली भाई जी मेरी जी बात जी साहब, सुनिए। बोले अबू अली भाई, आमिर नज़ीर कुत्ते ने एक पक्की दी हुई है मुसलमानों को कि आसकानी अपने बरोड़ पे कादियानियों को बिठाकर मुझे बुरा भला कहता है, और कहता है कि अगर उसने कहना ही है तो कहे, लेकिन कादियानी को ना बिठाए। और आमिर नज़ीर के जितने भी शागिर्द हैं, जिसने तरबियत ली है आमिर नज़ीर से, अब्दुल्ला जैसे, इमरान मलिक जैसे, और ये ह्यूमैनिटी जैसे, ये फिर आते हैं यही ताना देते हैं। मिर्जा हनजीर पर लानत बेशुमार, गुस्ताखियां करता। आपके मॉडरेट ये नशे में है, कोई मसला नहीं है, नशे में था। अच्छा, अब आमिर नज़ीर साहब की इस पक्की को वो जो आमिर नज़ीर के शैतान ने उसको पढ़ाया, शैतान ने, अब वो आते हैं यही कहते हैं कि भाई बिठाओ, आप मुसलमानों को बिठाओ और बात कर लो। मैंने कहा इसका जवाब ये है कि भाई आमिर नज़ीर, पीर साहब मेरा आपसे सवाल है पीर साहब, जान की मान चाहूँ तो मेरी बात तो पूरी सुन आपका ये ब्राड लगाने का मकसद क्या है पीर साहब? आमिर यार, इस फोबिया से निकल आए पीर साहब, ग्रो आप यार, आप मैच्योर बंदे हैं, कोई दीनी बात करें, हमें बताएं, कोई अहमदी बात बताएं, अल्लाह रसूल का नाम लगाएं। आमिर 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 छोड़ दें पीर साहब, आमिर का खेड़ा यार। साहब ने जो बात कहनी है उनको कहने दें, आप बाद में समझाएं। पप्पू देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पीर साहब ये की जो बात सुनने दे। पीर साहब है ना, ये उमर बाब और आमिर की जो शोहरत है उसको कैश करके अपनी ब्राड चमकाना चाह रहे हैं, बस। शार्प शूटर, एक मिनट, पीर साहब को अपनी बात मुकम्मल कर दें। उमर बाब का नाम और आमिर नज़ीर का नाम लेके उनकी मकबूलियत को इस्तेमाल करके ये ब्राड चलाना चाह रहे हैं, बस, और कोई मकसद नहीं है। ठीक, आपकी बात आ गई। अब वो आमिर नज़ीर ये पक्की उन्होंने पढ़ाया हुआ है कि मुसलमानों को बिठाएं। मैं आमिर नज़ीर कुत्ते को भी दावत दे रहा हूँ, और आमिर नज़ीर कुत्ते, पीर साहब आप फिर कुत्ता कह रहे हैं, देखें मजहूल सिगा इस्तेमाल कर रहे हैं। पीर साहब, मजहूल का, चले पीर मजहूल का साहब, सीगा, आपको गुस्सा मजहूल होगा, का किसी सीगा। किसी बात का गुस्सा होगा, ठीक है, आप मुसलमान भाई हो, लेकिन असल वजह आपके दरमियान बीच में एक चंद वीक पहले तो आप एक दूसरे पे जान शावर कर रहे थे, एक दूसरे के पास बैठते थे, अब क्या इतना मसला बन गया कि एक दूसरे को कुत्ता और गालियों तक बात पहुंच गई? असल मसला क्या है आप बीच? आप चले बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। पहले इस बात को आप नोट कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। साहब ऐसे वल्लाही पीर साहब, ना आपके इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ना मुसलमानों की, ना अहमदियों की। कोई यार कोई काम की बात करे, खुदा की कसम अफसोस हो रहा है, गालियां सुबह से दे रहे हैं, अपने गुनाह ही बढ़ा रहे हैं। ये मॉन्स्टर को तो यार म्यूट करें, ये पता नहीं आरी चला रहा है कोई। कौन? पीर साहब एक सवाल पूछना है आपसे, अगर जवाब दे दे तो। छोटा सा सवाल है। ट्रू मुस्लिम साहब का जो बंदा बैठा है इसका माइक म्यूट कर दें प्लीज। अपनी बारी का इंतजार करो, ट्रू मुस्लिम। हमारा मौजू है वो कुत्ता, मजहूल का सीगा। अच्छा, वही आमिर नज़ीर के बारे में ही सवाल पूछना है। ये बताएं कि क्या इस्लाम में, इंतजार करो, बारी का इंतजार करो, लाइन में लगो। जाहिद अस्कारी साहब सवाल पूछ सकता हूँ मैं क्या? वीआईपी नहीं हो, सारे इधर बैठे हुए, अपनी बारी का इंतजार करो, म्यूट लगाओ, चलो शाबाश। अस्कारी साहब सवाल पूछना है, मुझे भी मौका दें। भाई ब्रॉड पे रश बना हुआ है, आप अपनी बारी का इंतजार करें ट्रू मुस्लिम साहब प्लीज। अच्छा, ये एक मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। वो कुत्ता अपने बरोड पे इतना बड़ा पोस्ट लगाकर बैठता है कि 3 लोग आस्तीन के सांप हैं। नाम भी लें, किस किस का बोला है?
नाम भी उसने लिखे हुए हैं, बता देता हूँ पीर आप। साहब ये मॉन्स्टर एडी वाले को तो म्यूट कर दें पीर साहब, इसका शोर आ रहा है प्लीज। पीर साहब नाम नहीं लिखा हुआ, एडी नाम वाला नहीं कौन है? एडी वाला कौन है पता मुझे नहीं मालूम। ट्रू एमडी के ट्रू मुस्लिम के साथ जो बैठा हुआ है राइट साइड पे पीर साहब। भाईजान ये भी बड़ा जो है वो क्या करें आप, सुन लीजिए। उस कुत्ते ने अपने बोर्ड पे इतना बड़ा पोस्ट लगाया हुआ है कि 3 लोग हैं जो गद्दार हैं, आस्तीन के सांप हैं, मुसलमान नहीं हैं। नाम नहीं लिखा हुआ। अरे भाई नाम भी लिखा हुआ है, नाम आप भी लिखा दिखाएं जरा, दिखाएं किधर एक लिखा हुआ। मिनट, मैं खोल लेता हूँ अभी, मुझे कैमरा खोलना होगा। दिखाएं उमर अब्बास साहिबा आपको मैं भेज रहा हूँ वो पोस्ट, आप लगा लीजिए। उमर अब्बास साहिबा आप हैं? मैं आप जी मैं इधर ही हूँ। अगर ना लिखा हुआ तो फिर पीर साहब। उमर अब्बास साहिबा अगर नाम लिखा हुआ है तो उसको आप कुत्ता कहेंगे? मैं तो देखें, मैं तो नाम नहीं लिखा हुआ कहता पीर साहब, नाम नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ होगा तो शर्त लगाना तो हम हराम कंडेम है। करेंगे, हम उनको जाके गलतफहमी बोलेंगे। हुई है, नाम नहीं लिखा उन्होंने किसी का भी, आपको गलतफहमी हुई है। उमर अब्बास हाँ साहिबा जी, मैंने भेज दिया है, 2 जरा इसको गवाह यहाँ पर लगाइए। मैंने 2 एक गवाह मिनट, पेश कर जी दिए, जी 2 गवाह जी पूरे पीर हो साहब क्या गए। फरमाया? शरीयत पूरी मैंने हो गई, आपको भेज शरीयत दिया के है। मुताबिक 2 गवाह हो गए। भाईजान एक मिनट ना, उमर अब्बास गवाह भी साहिबा वो जो आमर नजीर के मुखालिफ हैं। अरे भाई किसको भेजूं, आपको भेज दूं? बिल्कुल, आमर नजीर मेरे मुखालफ मुझे है और नंबर 1 मुखालफ है। मैं गवाही दे रहा हूँ कि उसने किसी का नाम नहीं लिखा। हाँ अच्छा, मुझे भेजें, मुझे पीर साहब अच्छा जी, इस चीज की गवाही देते हो कि उसने किसी को फौज नहीं कहा? इस चीज की गवाही देते हैं कि वो कहते हैं बात मेरे को- को उसको बात को तस्वीरें खराब भेजती ना हैं। करो। मैं गवाही इस चीज देता की हूँ गवाही कि देते हैं कि आमर किस चीज की नजीर गवाही ने देंगे? किसी शख्स का नाम नहीं लिखा, किस ना बात की किसी गवाही देंगे मेरे भाई? किसी औरत का नाम लिखा, ना किसी मर्द का मिनट। नाम लिखा है उसने अपनी ब्रोड एक पे। मिनट, एक उसने क्या कहा है? शार्प शूटर चले मैंने आपको इस भेजा औरत है, के बारे में शार्प उसने शूटर। क्या कुछ कहा है वो बता दे। शार्प शूटर मैंने आपको भेजा है, यहाँ लगा लीजिए। जो कुछ मेरे बारे में उसने कहा है वो बता दे, मेरा नाम लेकर जो कहा है वो बता दे। अब हम 24 घंटे ब्रोड पे ऑनलाइन तो नहीं रहते ना। अब उसने किसके बारे में क्या कहा, किसके बारे में क्या नहीं कहा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। हम उसके साथ तो नहीं रहते 24 घंटे, तो ये मैं गारंटी दे जी, सकता हूँ अब कि उसने किसी जिसने का नाम- सुना है, जिसको ऑडियो सुनाई गई है, जिसको पप्पू मैंने भेजी आपको गई है, भेजा है, पप्पू मैंने आपको भेजा, देख लो। शार्प शूटर गवाही दो। मैं लगाता हूँ, उस पे नाम नहीं लिखा हुआ। और नाम अगर लिखा भी हुआ तो, और बात सुने ना, देखें आप कह रहे हैं उसने कहा है कि ये 3 सांप हैं, जबकि उस जो आपने भेजी है, मैं अभी कि वो इस पे लिखा हुआ है कि इनकी ब्रॉड पे ना जाए। अल्लाह के बंदे ऐसा मत कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है एक अहम ऐलान, उसके बाद लिखा प्लीज बड़ा इन करें, 3 लोगों ने। मुझे बड़ा करें, मुझे बड़ा करें, मुझे बड़ा करें। माम आप ही मुझे हाँ, ये बड़ा देखें, करें। ये देखें, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? पीर आसकानी पप्पू मलिक उमर अबाब लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? देख लो। ये किसकी लिखा हुआ जी है? पीर साहब लिखा हुआ है। पीर साहब ID भी पीर साहब दिखाएगा। माजरत मैं माजरत चाहता हूँ, मैं समझा शायद नहीं था लगा, वो दूसरी पोस्ट में नहीं लिखा है, इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल। इसमें लिखा ये हुआ कहाँ है। पे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये उन्होंने पोस्ट लगाई है? हमें रिकॉर्डिंग पेश करें। की आईडी भी दिखाए ना, कहाँ लाइव है वो। ये तो सिर्फ एक हमें पोस्ट बनी हुई है। आपकी ये तो बात पे पोस्ट कोई यकीन भी नहीं है, बना अभी आप सकता है। मुखालफत में इधर हैं। 3 नाम लिखे, मैं किसी आपका नाम लिख सकता हूँ, इधर ये शार्प शूटर का नाम लिख सकता हूँ, उसकी आईडी साथ नहीं आ रही ना। अच्छा, बिल्कुल। अगर और रिकॉर्डिंग बताएं इसकी, जिस पे ये आमिर नजीर अगर वो कुत्ता ये कहे कि मैंने नहीं लिखा हुआ है, बस मैं झूठा, बस इतना उससे पूछ लो उस कुत्ते नहीं, से। पीर साहब जब हम पेश करते हैं प्लीज देखें, आप देख पूरी बात को करें। फिर ये हम जब 3 सांप किसको कहा है वो बता दे। नहीं देखो ना, चले जी, नाम नहीं लिखा, जिसको कहा है वो कौन है वो बता दे। बात सुने, एक बात मैं जिसको कह सकता कहा हूँ है उसका नाम बता दे, वो कौन है। आप तीनों के बारे में आमिर नजीर ने कुछ ना कुछ कहा होगा, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं दे सकता इस बात की। लेकिन ये है कि उसने आपके बारे में ये तीनों नाम लिखे हुए जो उसकी ब्रोड पे नहीं लिखे। मैंने ये कहा किसने जो लिखा? उसके बातें बारे में करते कह रहा है, होंगे। वो बता दे ना। उन्होंने ये कहा कि आप 3 जो उसने जो है, मेंशन किया, 3 सांप, ये कौन है? पीर उसे साहब बताया ये तो होगा आपका ना। ये पीर साहब ये हवाला तो आपका ये गया। वो क्लियर कर दे, वो 3 सांप कौन है। ऐ खुदाया, वो ऐ 3 खुदा। सांप देखें, वो उन्होंने ऐ 3 खुदा। सांप का है ना, आप तो सांप हो नहीं सकती, आप तो फीमेल ऐ है, खुदा, तो इसका ऐ मतलब है खुदा। आपको नहीं कहा।
اے خدا میری بات سنیں، وہ اس نے جو کہا ہے وہ یہ ہمارے تین مسلمان صاحب کون بھائی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک صاحب سے امے کی شادی ہوئی تھی قادیانی سے، وہ بتاؤ۔ اچھا دیکھیں میرے بھائیوں، یہ جو پوسٹ ہے عامر نذیر نے اپنے ہی آپ ہمیں ریکارڈنگ دکھائیں گے تب، نہیں تو آپ کا حوالہ گیا۔ اچھا سن تو لیجئے، دو میں آپ صفحے کو آگے بول رہا دو ہوں۔ صفحے پیچھے ریکارڈنگ بتائیں کہ یہ دیکھو یہ صاحب یہ ریکارڈنگ میں نے سنی ہوئی ہے، یہ عامر سیال صاحب کی لگی ہوئی تھی، واقعی وہاں پہ عامر نذیر صاحب بیٹھے تھے۔ یہ چوری نہیں تو پکڑی بیٹھے گئی تھے نا بھائی، تو بات وہی ہوگی نا، تو پھر عامر صاحب نے لگائی ہے نا، بات تو ایک ہی ہوگی نا۔ نہیں نا، ان کی اپنی یہ عامر نذیر ہی نے لگائی ہوئی تھی، یہ پوسٹ انہی نے لگایا ہوا ہے، آپ انہی سے پوچھ لیجئے۔ اگر کہا کہ اس نے یہ نہیں لگائی ہوئی تھی، دنیا کا جی سب جی سے پیر بڑا صاحب اسی نے لگائی تھی، عامر سیال کی براٹ تھی لگائی، عامر نذیر نہیں تھی، میں گارنٹی دیتا ہوں جی۔ پیر صاحب میں معذرت کرتا ہوں، کال آ گئی تھی تو مجھے جانا پڑا، تو آپ کریں بات۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عامر نذیر نے اپنے جو شاگرد ہیں ان کو ایسا تیار کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں مجاہد میں نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ مجاہدوں کی حالت یہ ہے کہ یہاں آ کر وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ عمر رباب صاحبہ، جس کو میں اپنی بڑی بہن مانتا ہوں دنیا اور آخرت میں، میری بڑی بہن سبھی بہن مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں وہ۔ ادھر عامر نذیر صاحب کے مجاہد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شادی کرا رہے ہیں ان دونوں کی۔ کبھی زندگی میں کسی بہن اور بھائی کا شادی ہوا ہے؟ ابھی کسی کو نیچے سے لیں، اگر کسی نے بولا تو یہ ایسی بدتمیزی نہیں نہیں نہیں، کرنی بو صاحب نہیں، کسی مجاہد کو اوپر لیں، پھر وہ اگر بولا تو پھر کہیں گے ہم، چلیں اوپر لیں کسی کو۔ یہ دیکھو ہر بات کو بھئی انکار کر رہا ہے، اب کیا کریں مجھے بتائیے۔ اصل آپ تینوں کے بیچ میں اصل ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ اصل ناراضگی کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ عمر رباب صاحبہ کی ناراضگی وہ خود بتائیں گی پہلے، آپ اپنی بتائیں۔ نہیں میں بعد میں، وہ میری بڑی بہن ہے۔ جی عمر رباب صاحبہ آپ اپنی بات چلے ان سے تو ان کو کچھ اور بھی، مثلا کہ کوئی ہو سکتا ہے کچھ لوگ عورتوں کو براڈ چلانا یا یعنی کہ ایسے پبلکلی آنا وہ پسند نہیں کرتے ہوں گے ان کی، اور آپ اپنا بتائیں کہ آپ کی کیا وجہ ہے ان عامر صاحب سے۔ عمر رباب صاحبہ آپ موجود ہیں؟ جی جی میں موجود ہوں پیر صاحب۔ آپ ان کی گندگی اور غلاظت عامر کتے کی بتائیے ابو علی صاحب کو، پھر میں اپنا بتا دیتا ہوں۔ جی خاموشی سے سنیے مسلمانوں اس کتے کی کہانی۔ جی عمر رباب جی صاحبہ۔ دیکھیں پیر صاحب، حق بات اگر میں آپ سے یہ کہوں اور خدا کو حاضر ناظر جان کر کہ نہ میں اس شخص کو جانتی ہوں، نہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، نہ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، لیکن گزشتہ 2 سال سے یہ اس قسم کی مکروہ حرکتیں کرتا ہے، اس قدر غلاظتیں کرتا ہے، اس قدر یہ میرے بارے میں گند بولتا ہے، حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا کہاں نہیں۔ میں اس حد تک مجبور ہو کر آج میں اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں، ورنہ میں نے کبھی اس کی بات کو غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس چیز میں شارپ شوٹر میری براڈ کے اوپر سب سے زیادہ بیٹھا ہے۔ اب اس سے اس چیز کی گواہی لیں کہ کبھی میں نے اس مردود شخص کا ذکر کیا، لیکن کون سی براڈ ہے، کون سے لوگ ہیں جس کو اس نے میری براڈ سے نہ روکا ہو، جس پہ اس نے میری کریکٹر کے اوپر بات نہ کی ہو، جس نے میرے علم کے اوپر بات نہ کی ہو؟ کون بندہ ہے جہاں پر اس نے اپنی براڈوں کے اوپر مجھے گالیاں نہ دلوائی ہوں؟ جی شارپ شوٹر صاحب ذرا گواہی دے آ کے۔ وہ تو نہیں دے گا، وہ تو نہیں دے گا، اس کا بھی پتہ چل جائے گا نہیں دے گا۔ نہیں جی انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ دیکھو میں سچی گواہی اپنے باپ کے خلاف بھی دیتا ہوں پیر صاحب، اس بات کا آپ کو پتہ ہے۔ جی گواہی دیں اس چیز کی۔ انہوں نے کہا کبھی آپ نے ذکر نہیں کہا، گواہی آگے آپ اپنے آگے بات بتا دیجئے پوری۔ اور اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے گزشتہ 2 سال سے، ابھی مجھے 1 ویک نہیں ہوا تھا، اس وقت سے یہ تماشے کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ پیر یہ بتائے جی، اس چیز کی گواہی دے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے عامر نذیر یا نہیں؟ دیکھیں جس طرح عمر باب صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی وجہ کیا، وجہ ناد کیا ہے آپ کے بیچ میں؟ جی اس کی پہلی وجہ تو اس نے جو بتائی کہ میں ایک براڈ کے اوپر تھی، وہ فیورٹ 49 کی براڈ تھی۔ آج سے تقریباً کوئی 1.25 2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے آئے ہوئے لائف کے اوپر کوئی 8-10 دن ہوئے تھے۔
उसने अब्रॉड के ऊपर वो आमर नज़ीर को लेते रहे, मैं बात कर रही थी, वो नहीं आया। जब मैं ड्रॉप कर गई तो मुझसे ये कहा कि ए गंदी औरत जिथे होवे मैंने उथे ना बुलाया करो, मैं उथे नहीं आंदा। हालांकि मैं इसको जानती भी नहीं थी कि ये कौन है और कौन नहीं है। अब अबू अली मुझे ये बताएं कि किसी के बारे में जब तुम नहीं इस तरह की बात पब्लिकली करोगे, लेकिन मैंने इस बंदे को जवाब नहीं दिया। मुझे जज्जा जो है जमात कादियानी का और बहुत सारे लोगों ने सवाल किया डिफरेंट ब्रॉडों के ऊपर कि उमर बाब साहिबा आपके बारे में आमिर नज़ीर इस तरह की मतलब कमेंट्स रखता है और बड़ी गंदी गुफ्तगू करता है आपके बारे में। मैंने जवाब में कहा कि ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें दखल ना दें। उसके बाद मैंने इसने डिफरेंट ब्रॉडों के ऊपर जाकर लोगों को कहा कि ये कादियानी है, जबकि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर के मेरे खानदान में कोई कादियानी नहीं है, मेरे ससुराल में मेरे खानदान में कोई बंदा कादियानी नहीं है। लेकिन मेरे बाप साहब एक सेकंड शेख आदि साहब, खत्म नबूवत का कोई नंगा नहीं हुआ। हाँ, आपकी जितनी जमातें कादियान नंगी हो रही है और मिर्जा साहब को कोई भी मुसलमान नहीं माना, सब उनको कज़ाब और दज्जाल ही मानते हैं मेरे भाई, और मानते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप अपनी फिक्र करो मुसलमानों पे, आप ये ना समझो कि मिर्जा साहब सच्चे हो गए। प्लीज मिर्जा साहब क्या सुबह तक सच्चे नहीं हो सकते। बात करने दीजिए प्लीज। जी, उसके बाद डिफरेंट ब्रॉडों के ऊपर मुझे इस कदर गलीज गालियां निकाली गई किस वजह से? जी, ये आबिद नज़ीर की ब्रॉड के ऊपर, इसमें ज़िया अमीनी, इसके लोग यूसुफी नाम की आईडी, शुएब मलिक के नाम की आईडी, एक अबू बकर के नाम की आईडी, साकी के नाम की आईडी, उसके बाद जो अपना मुफ्ती मुबशर, इन्होंने अपनी ब्रॉड पर बैठकर इस कदर गलाजतें मेरे साथ दो साल बोली है कि आप उसका सोच भी नहीं सकते। वजह क्या? यहाँ तक कि लोगों ने रिकॉर्डिंग लाकर दी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये हमारे मुफ्ती हैं, मैंने इनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी। वो जब मेरे पास आए मैंने उनको इज्जत दी ये कहकर कि ये हमारे मुफ्ती हैं। अबू अली साहब, वजह उसकी ये है कि जी मैं लाइव अस्कानी भाई हूँ। अस्कानी भाई, उमर बाब साहिबा आप फेवरेट 49 को यहाँ पे मदू करें, और उसकी ब्रॉड पे अगर कोई रिकॉर्डिंग है, मैं अभी आमिर नज़ीर के खिलाफ ब्रॉड लगाता हूँ। अभी मैं मर्द का बच्चा हूँ, मैं अभी 2 साल पुरानी तो उसके पास नहीं होगी रिकॉर्डिंग। बू अली भाई एक नहीं, उसके पास सारी रिकॉर्डिंग होती है, वो अपलोड करता है। अभी आप उसको बुला लें, अगर वो ये गवाही दे दे कि आमिर नज़ीर ने ये बात किया, मैं अपने बाप का बेटा नहीं, अभी उसके खिलाफ लगाता हूँ। मैं तुम्हें कसम खाकर ये बात कहती हूँ कि मैं जब जज्जा की मतलब ये सब थे तो उसने ये कहा कि जी मैं इस औरत को, क्योंकि ये औरत है, मैं औरत के साथ बैठना ही पसंद नहीं करता, तो उसने कहा चंदा के साथ तो 2-2 घंटे बैठा होता, तो आपके बारे में इस तरह की बात क्यों करता है ये? मेरी बात सुने ना जी, जो बात पिछली आपने कही है कि इसने अच्छा, क्या सिर्फ औरत की वजह से वो? बू अली भाई एक मिनट, जी बिल्कुल बू अली भाई एक मिनट, अगर उमर बाब साहिबा, अगर आमिर नज़ीर ने ये बात फेवरेट 49 की ब्रॉड पे की है, आप फेवरेट 49 को अभी बुला लें, उसको शेयर करें। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, उसकी रिकॉर्डिंग दें, के पास मैं है या खुदा नहीं की है। कसम उठाता हूँ, मैं अपने बाप का बेटा नहीं, अभी जाके आमिर नज़ीर देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके पास जाएं, आप इस चीज की गवाही दे सकते हैं। फिर देखें मेरी ब्रॉड पे रोका गया लोगों को, मैंने कभी किसी को नहीं रोका कि फलां के पास जाए, फलां के पास ना जाए। चार दीवारी को कायम रखना जरूरी है। भू साहब एक मिनट, अगर यहाँ पर फेवरेट 49 सुन रहे हैं, यहाँ पर जज्जा सुन रहा है, तो वो तशरीफ ले आए और आके गवाही दे दे। आप बड़ी बहन है, मुझे ये बताएं, अगर वो ये कहता है, और मैंने भी कई दफा उसके मुंह से ये बात सुनी और मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ कि भाइयों को बहनों के साथ ही टिकटॉक पे बैठना चाहिए, तो एन इस्लाम है, इसमें उसकी क्या गलती है? मेरी बात सुने, वो जाए अपना मुझे ये साबित, वो अपना एक मौकफ रखता है, वो अपनी जगह पर रखे, अपने माँ बहन भाइयों को ना आने दे। मेरा एक अपना मौकफ है कुरान और हदीस में, मैंने सूरत तौबा की आयत पढ़ के बारहा सुनाई कि मर्द और औरत एक नेकी की कॉज के ऊपर इकट्ठे काम कर सकते हैं, वो हॉस्पिटल हो, वो स्कूल हो, वो ब्रॉड हो, वो कोई भी जगह हो।
मैंने उमर बाप सूरत साहब, आपकी तौबा बात की भी- आयत पढ़ के सुनाई। मौलवी साहब एक सेकंड, सूरह तौबा आपकी में बात कहाँ पे भी लिखा हुआ है, कौन सी दुरुस्त है आयत कि आप आप- कौन जी, मौलवी साहब एक सेकंड, कौन सी आयत में लिखा हुआ है जहाँ से आपने जी इस्तदलाल सूरत तौबा की आयत नंबर कौन सूरह तौबा की 77। कौन सी आयत है, कौन सी आयत है? चले मैं आपको बता देती हूँ। अभी बताएं, अभी सब हमारे मैं अभी बता दूं, यार अभी बता दूं। पप्पू एक टॉपिक तो क्लोज नहीं अभी पता चल जाए, दूध का दूध, पानी का पानी, के कुरान में किधर लिखा हुआ है कि जी नहीं? सूरत तौबा आयत नंबर 71 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुमिनीना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बाज आपस में बाज के दोस्त हैं। यामुरून बिल मारूफी व यनहौन अनिल मुनकर, और वो हुक्म देते हैं अच्छी बातों का और वो रोकते हैं बुरी बातों से। व युक़ीमून अस्सलात व यूतून ज़काता, और वो कायम करते हैं नमाज को और वो अदा करते हैं ज़कात को। व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, और वो अताअत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की। उलाइका सयरहमुल्लाहु, और यही लोग हैं रहम फरमाया अल्लाह ताला ने उन पर। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। अब इसमें मैंने आयत आपको पेश कर दी। इसके अलावा हजरत आयशा की जो मिसाल है आपके सामने के सबसे ज्यादा अहादीस जो है हजरत अबू हुरैरा और हजरत आयशा से मरवी है। हजरत आयशा ने खुद तबलीग फरमाई है, हजरत आयशा ने जंग जबल लड़ी है, उसके अलावा हजरत सफिया, उसके अलावा मुतअद्दिद जो खवातीन थी वो मशीर तक रही है खिलाफत। उमर बाप साहबा, ये सब एक सेकंड यार, बोले साहब एक सेकंड ना यार, एक सेकंड। माहम साहिबा आप कह रही है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं जी, तो आप समझती हैं कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत की दोस्ती हो सकती है? यहाँ पर आपको कुरान का असलूब समझना पड़ेगा। दोस्त से मुराद वो दोस्त का नहीं ये जो आप कादियानी अमेरिका कर के रहे हैं, पाकिस्तान या यूरोप में कादियानी बैठ अपनी के बहनों करते से हैं। दोस्ती भी कर रहे हैं, यहाँ वन से टू वन और तबलीग या कर रहे हैं। एक दूसरे का साथ, एक ये जो दूसरे अहमदी काम है, के लिहाज से एक दूसरे के साथ को होना असलूब ये समझते जो हैं कुरान सैफी का। कर रहा है, अहमदी कर रहा है, नादर कर रहा है, एक दूसरे की बहनों के साथ ये लोग प्राइवेट चैट करते हैं या प्राइवेट तबलीग करते हैं, ये आप यानी कि कुरान की हिदायत से वो ठीक कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं? क्या कह रही है, क्या करती है? कुरान की ये आयत से कहाँ निकलता है कि मोमिन मर्द और औरत एक दूसरे के दोस्त हैं? वो तो मोमिन औरतों और मर्दों का ओवरऑल अल्लाह ने बताया कि वल मुमिनीना मुज़क्कर का सीगा है मर्द का, वल मुमिनात मुन्नस का सीगा है, और मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें आपस में है ना, एक दूसरे के रफीक औरतें हैं। औरतों के साथ और मर्द मर्द के साथ हैं। जी मर्द और मोमिन आपस में वल मुमिनीना मोमन मेरी मर्द बात नहीं, सुने। मोमन मर्द ये और सब आप- ये सब औरतें आप यहाँ बाज पे उनके आपस में बाज सब आप के और तशरीह या करें, क्या रफीक मोहम्मद औरत और मोहम्मद मर्द के आपस में दोस्त हो सकते हैं? मैं उम्मीद साहब का नंबर और लेके यहाँ से check मुराद करता हूँ। जो है आप दोस्ती जो अमेरिका वाली दोस्ती या फ्रेंडशिप कहते हैं, ये सब- इसका मतलब है कि नेकी के हुक्म के लिए, ये सब- नमाज ये सब कायम आप करने के थोड़ा लिए, यहाँ पे नेकी हमारा- की तालीमात के लिए इकट्ठे काम भाई कर सकते नेकी हैं, से काम इकट्ठा साथ साहब रह से सकते हैं। काम निकाह पे पहुंच जाते हैं इमाम साहब। हमारे पाकिस्तान में मुल्ला क्या करते हैं? हमारे मुल्ला तबलीग के घर से की मान जाओ, एक मिनट, हमें किसी नतीजे पे यार, पहुंच- साहब, दावत और नतीजे पे तबलीग पहुंच के गए। लिए, इस तरह बात किसी है, इस्लाह के पहलू के इस्लाम लिए, में औरत अच्छे की काम की आवाज- तलकीन के लिए यार, दोनों साहब- मिलकर काम कर सकते हैं। इस्लाम में उमर जायज बाप है। साहब, हजरत आयशा ने किया, औरत की आवाज कभी हजरत पर्दा अल्लाह सफिया ताला ने ने किया। हमारी एक माओ मिनट। को फरमाया था कि ऐसी ना आवाज निकालो कि किसी के जिसके दिल में बुराई है ना, कुरान ऊंची आवाज में भी औरत दूसरे गैर एक महरम के ऐसा पास ना न जाए, बोलो ऐसे कि जो- हवाले भी हैं। इस तरह से उमर बात बाप साहब, करना, आप ये देखिए, इस तरह से बात करना पीर कि साहब, आप जिससे यहाँ पे पीर साहब उसमें खामोश ये क्यों है, पीर शुबा साहब? हो। ये उमर बाप मेरी साहब, बात सुने, एक मिनट, साहब आप मुझे मेरे बाप- बताएं, मर्द और एक औरत मिनट, की मेरी बात दोस्ती सुने, जायज है नेकी के काम में? एक मिनट, मुझे ये बताइए, आप कहते हैं, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, जिस औरत को वो फौश कह रहा है उसको इस्लाम इजाजत देता है, उससे मेरा क्या देखा? वो 5 गवाह पेश करता है, यहाँ पर वो बात 4 सही है गवाह आपकी। लेकर आता है, वो बात किस सही तरह है। साबित करता है वो? एक मिनट, अस्कानी मेरी बात साहब- सुने, अस्कानी साहब मेरा इस आयत लोगों को से आप क्या कहता है, कहते मैंने हैं? इस औरत का पता था वो, मैंने उमर बाप साहब, वो उमर किस बाप वजह से साहब, एक कहता है? मिनट। किस उमर तरह बाप की साहब, बैठ के वो इस तरह की बात कर सकता है उमर मेरे बाप बारे साहब, में? एक मिनट प्लीज आप एक पीर मिनट, साहब, please। आप इस पीर आयत साहब, के आप इस मुताबिक आयत के क्या बारे में कहते क्या हैं कहते हैं कि कि मोमिन मर्द औरतों से दोस्ती कर सकते हैं? सुनने ना बन जाए, अब इसने ना बन पप्पू, जाए एक पीर साहब मिनट। इस आयत का। मैं पीर साहब को भी कॉल करता हूँ, पीर साहब शायद अवे होंगे, ड्रामा करें, अभी मैं कॉल करके बुलाता हूँ। चले जान के मान, एक मिनट, उमर बाप साहब, अगर उसका ये नुक्ता नजर है कि औरत तबलीग नहीं करे, बाकी मुसलमान तो आपको नहीं रोकते, आप अपने स्टेज पे आप तबलीग करें, फाबेहा, ठीक है, आप उनके पास ना जाएं। मैं तो उनके पास कभी गई ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं वो है कौन है।
उमेर बाप साहिबा देखें, मैं आज तक उसकी ब्रॉड पर नहीं गई, मैंने आज तक उसको क्या सुना नहीं है, आपने ना मैं कभी सुनना उनके चाहती हूँ। खिलाफ किसी ब्राड पे कोई बात की हो? मैंने आज तक उसका नाम लेना पसंद नहीं करती मैं, मुझे पता ही नहीं कि है कौन है। लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा है वो। अच्छा, यानी कि आपने कभी उनके मामलात में किसी और ब्राड पे जाके कोई डिस्कशन मैंने नहीं कभी नहीं किया, बिल्कुल नहीं। तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई वजह अनाद एक दूसरे की कोई वाजे नहीं होती क्या है कि आप ने उनके देखिए, मेरा खिलाफ फेवरेट 49 की ब्रॉड का मैंने आपको बताया, लोगों ने मुझसे सवाल को किए, पेश करें। मैंने कहा जी हमारे अगर घर का वाज़ेह हो मामला है, आप जाती है। इसमें दखल ना दें। मोहतरमा मेरी मैंने बात कभी सुनो। उसको अपनी ब्रॉड पे इनवाइट नहीं किया, मैंने कभी उसको बुलाया नहीं, कभी मैंने जहां पर वो बैठा हो मैं कभी गई नहीं। मैंने कभी उसके बारे में, एक दफा जब इसने मेरे बारे में ये कहा कि ये फोश औरत है, इसकी ब्रॉड पे ना जाया करो, मुख्तलिफ लोगों को इसने मना किया, लेकिन लोग फिर भी आते रहे मेरे पास। उसके बाद इसने कहा ये लोग ठरकी हैं, ये अपने चस्के पूरे करने जाते हैं इस औरत के पास। इस बात से इसे मैं यहाँ agree- तक अल्फाज ये बोले। बात ठीक है, वाकई कुछ लोग ठरक पूरा करने के लिए औरतों की ब्राडों पे जाते हैं। मैं आमर नज़ीर से एग्री करता हूँ। जज़ाकल्लाह। नहीं, लेकिन हर मकसद एक ही हर बंदे का ब्रॉड पे जाने का नहीं होता कि उमेर बाप से, लेकिन हो सकता है कि नजरियाती उमेर बाप के साथ पप्पू मेरी उनका बात सुनो। इख्तिलाफ कोई बैकग्राउंड में हो कि उमेर बाप साहब आप किसी वक्त में पहले जमात अहमदिया में रह चुकी हैं या कि नहीं रह चुकी? हमारे पूरे खानदान में कभी कोई जमात अहमदिया का नहीं, आपकी फैमिली में कोई भी नहीं? हमारी फैमिली में कोई नहीं है, नहीं। पेरेंट्स की तरफ से या ससुराल की तरफ से? इसका सारा इसका जो खानदान है पूरा वो है, ये रोज वलीमे आए दिन खा रहा होता बैठकर। अच्छा भाई, सलाम अलैकुम। आपके ससुराल अच्छा, में अभी एक मिनट ये इसका खानदान जो भाई, है एक वो मिनट, परजई आयत का है। तर्जुमा बताएं पीर साहब। मर्द भाई- औरतें और मर्द मुसलमान औरतें और आदमी आपस में इस मसले क्यों आप बात कर रहे हैं? बात क्यों पूरे होने नहीं दे रहे? ये सब आयत का तर्जुमा बताएं ना। ये हमारी बहन कौन ने सी आयत का? कौन सी आयत का? सूरत तौबा आयत नंबर 71। 71 जी जी, इसमें अल्लाह ताला क्या हुक्म दिया? नंबर तो याद नहीं है, पढ़िए उसको। सूरत तौबा आयत नंबर 71। कुछ पढ़िए तो मैं मेरे बाप साहब तलावत कर देना आप एक दफा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुमिनीना वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम बस समझ गया, औलियाउ बाज़ समझ गया। यअमुरूना बिल मारूफी। समझ गया, आयत समझ गया। क्या चाहिए इसका? उमेर बाप साहबा कहती है जो लोग मुझ पे एतराज करते हैं कि औरत का ब्राड चलाना इस्लामी रूह से जायज़ नहीं है, तो मैं शरह में ये दलील पेश करती हूँ कि कुरान की आयत है कि मर्द और औरतें दोनों पब्लिकली। यार बोली साहब एक सेकंड अपने पास से ना लगाओ, एक मिनट। अच्छा देखिए जी, मैं इसका मफहूम पेश कर देती हूँ। मेरी बात सुनिए। इन्होंने और कहा कि मुसलमान मर्द जो है वो औरत के साथ बात नहीं कर सकता, इनकी औरत का आना मना है। मैंने कहा कि वल मुमिनीना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, कि मोमिन और मर्द और मोमिन औरतें रफीक हैं एक दूसरे के बाज़ जगहों पर। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, अच्छी बात की तलकीन करने में और बुरी बात के रोकने में। वयुकीमून सलात, और वो नमाज को कायम करते हैं। वयुतून ज़कात, और वो ज़कात को अदा करते हैं। वयुती अल्लाह व रसूलहू, और वो अल्लाह की अताअत और रसूल को भी बजा लाते हैं। उलाइका सयरहमुल्लाहु, यही लोग हैं रहम जल्द फरमाएगा अल्लाह ताला उन पर। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। जी दुरुस्त साहब दुरुस्त है। मेरा क्वेश्चन सुने ठंडे दिमाग से पीर साहब। मेरा क्वेश्चन ये है, जो अमन नज़ीर कहता है कि तकवा ये है कि मुसलमान खातून अगर बरात पे बैठी हो तो मर्द उसके साथ ना बैठे, क्योंकि दिन में शैतान ज़ाहिर है हम मर्द हैं। जी, तकवा ये है। यार सुन तो लेना मेरी बहन, मेरी बात सुने, तकवा की बात कर रही है। तकवा ये है कि एक ब्रॉड के ऊपर बैठकर वो कहता है मैनू एदा पता दसो। पे बात करें ना आप लाहौर, मैं पेशावर जा रहा हूँ, आप लाहौर मुझे बताए ना, मुझे पहले उसको मुत्तकी साबित करो, उसको मुत्तकी साबित करो मुझे, उसकी किसी फेल से मुझे मुत्तकी साबित करो, फिर आगे बात करो। चेक करने का कोई पैमाना नहीं हमारे पास। देखिए जी, सबसे पहले तकवा की लीमा तकूलूना माला तफअलून, क्यों कर वो बात कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। मेरे बाप साहब ठीक है, खवातीन के साथ बैठो। एक मिनट यार बोली भाई, पीर साहब आपका क्या मसला है आमिर साहब से? अच्छा सुन लीजिए, इस आयत के बारे में सुन लीजिए। इस आयत में क्या आया? इस आयत में ये है कि मोमिन मर्द और औरतें आपस में दोस्त हैं।
हाँ, उनकी दोस्ती क्या है, उनकी दोस्ती है क्या, उनका गठजोड़ क्या है, वो बता दिया। इसमें मर्द और मर्द खवातीन दोस्त हैं और मर्द मर्दों से दोस्त हैं ना ये साहब बिल्कुल का ऐसी बात कॉल नहीं। वो तबलीग कर सकती हैं ब्रॉड पे बैठ के। एक मिनट आप सुन तो लीजिए मुफस्सर ने क्या लिखा, मुझे तो छोड़ दीजिए, मुफस्सर ने क्या लिखा उसको सुनिए। देखें القول في تعويل قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء